Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to start our third reading session of the day the dam broke, and in this session we will come to know about how the militiamen came and they tried to restore the order, but in the beginning their announcements, instead of restoring the order, increased the panic of the situation, and moreover why the writer compares this whole situation with Mary Celeste, a mysterious ship that was found by some mariners in history, and also he will tell us some of the events that took place in the cinema, and then later on when people were running in the streets, what other things happened, and also in the end the writer will tell us an interesting event of Dr. Mallory, who was running with great conviction that the water is about to engulf him, but later on he found out that the sound that he was taking for water was actually the sound of the roller skates, because behind him a boy was coming on roller skates and he was running very fast to keep himself ahead of the rushing waters that were, according to him, were behind him. But it was not the water, it was the sound of the roller skate that was making him run. So let's begin. Nobody has ever been able to compute with any exactness how many people took part in the great rout of 1913. For the panic which extended from the Winslow bottling works in the south and to Clintonville, 6 miles north, ended as abruptly as it began, and the bobtail and ragtag and velvet-gowned groups of refugees melted away and slunk home, leaving the streets peaceful and deserted. Now in the sentence, rout means stampede, retreat. When you run away, when an army run away from the battlefield, that means the army is routing. So rout का मतलब भगदड़ मच जाना, दौड़ जाना. So the rout, nobody knows how many people took part in this rout. For means यहाँ पर क्योंकि. So for the panic which extended, जो के माना panic जो के फैली हुई थी, कहां से कहां तक फैली हुई थी? From the Winslow bottling works in the south and to Clintonville, 6 miles north, ended as abruptly as it began. So this panic ended as abruptly as it began. Abruptly means यकदम, फौरन ही. So it ended as abruptly, जितनी तेजी से ये शुरू हुई उतनी ही तेजी से जो है ये खत्म भी हो गई. And the bobtail and ragtag and velvet gowned groups of refugees melted away and slunk home. Bobtail and ragtag means गरीब लोग and velvet gown means अमीर लोग. So all the poor and rich people or groups of people of refugees means people who were running away. Refugees means पनाह गुज़ीन या किसी जगह को छोड़कर भाग जाने वाले लोग. So they melted away and slunk home, leaving the streets peaceful and deserted. Melted away means वो बिखर गए. वैसे तो melt का मतलब होता है पिघल जाना, लेकिन यहाँ पर जो है जितनी तेजी से वो ग्रुप बनाकर दौड़े थे उतनी तेजी से जो है वो खामोशी से जो है slunk home. Slunk is the second form of slink का मतलब होता है चुपके से कहीं से निकल जाना. तो because later on when they found out that it is not the flood but merely a rumor of the flood that was actually making them run, so they went home trying to hide themselves from other people. The shouting, weeping, tangled evacuation of the city lasted not more than 2 hours in all. So the shouting of the people, the weeping of the people, the tangled evacuation of the people. Tangled means बड़े ही बेढंगम तरीके से जो evacuate किया उन्होंने शहर को, खाली कर दिया. Evacuation का मतलब खाली कर देना. So this evacuation of the city lasted not more than 2 hours. Last means चलना. So it went on not more than 2 hours in all. Some few people got as far east as Reynoldsburg, 12 miles away. 50 or more reached the country club 8 miles away. Most of the others gave up, exhausted, or climbed trees in Franklin Park 4 miles out. That some of the people reached Reynoldsburg, a place some 12 miles away from the city. Some of the people reached Country Club, another place that was some 8 miles away from the city. And most of the people later on got so much exhausted that they gave up. Gave up means himmat haar dena. So they gave up, वो हिम्मत हार बैठे, and they were extremely exhausted. वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, थक चुके थे. And they climbed the trees in the Franklin Park. और वो जो है Franklin Park जो के रास्ते में आया तो वो उसके दरख्तों पर चढ़कर जो है बैठ गए और काफी देर तक इंतजार करते रहे कि
कब जो है सैलाब का पानी जो है वो आता है तेजी के साथ। Order was restored and fear dispelled finally by means of militia men riding about in motor lorries, bawling through megaphones, "The dam has not broken." ओके, सो बॉलिंग मीन्स यहां पर जोर जोर से धाड़ना या चीखे मारना। सो द मिलिशिया मैन, द ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब बहाल करना। ओके, सो द ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड एंड फियर डिस्पेल्ड, डिस्पेल मीन्स ऑल्सो टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज को खत्म करना। तो वो डर जो है और खौफ जो है वो खत्म किया किन्होंने? मिलिशिया मैन ने। मिलिशिया मैन एक ऐसी आर्मी होती है जो कि सिविल लोगों के जरिए बनाई जाती है ताकि जो दूसरी पुलिस या आर्मी है उसकी वो मदद कर सके। तो द मिलिशिया मैन केम इन द सिटी राइडिंग अबाउट इन मोटर लॉरीज, दे वर राइडिंग इन मोटर लॉरीज एंड दे वर बॉलिंग, BAWLING, यानी कि वो जोर जोर से जो है अपने मेगाफोन्स के अंदर जो है वो जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे। और क्या चीख रहे थे वो? द डैम हैज नॉट ब्रोकन, द डैम हैज नॉट ब्रोकन, कि जनाब डैम नहीं टूटा है। एट फर्स्ट मींस शुरू में दिस टेंडेड ओनली टू एड टू द कंफ्यूजन, ये जो ऐलान था इसने जो है कंफ्यूजन में इजाफा किया शुरू में, एंड इंक्रीज द पैनिक, और पैनिक को और ज्यादा बढ़ा दिया। फॉर मैनी स्टैम्पीडर्स, स्टैम्पीडर्स मींस भागने वाले, भगदड़ मचाने वाले। तो फॉर मैनी स्टैम्पीडर्स, जो बहुत सारे भागने वाले लोग थे, दे थॉट दैट द सोल्जर्स वर बिलोइंग, सोल्जर जो हैं वो जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं, और वो ऐलान क्या कर रहे हैं? द डैम हैज नाउ ब्रोकन, यानी कि वो नॉट को नाउ समझ रहे थे शुरू में। दस सेटिंग एन ऑफिशियल सील ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन द कैलामिटी, कैलामिटी मींस आफत। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सरकारी तौर पर भी जो है, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को ऑथेंटिकेटेड कर देना, किसी चीज को पक्का कर देना, मुस्तनिद बना देना। सो दे बिलीव दैट दिस अनाउंसमेंट दैट द डैम हैज नाउ ब्रोकन हैज सेट एन ऑफिशियल सील। सेट एन ऑफिशियल सील का मतलब होता है सरकारी मोहर लगा देना, कि जनाब अब तो इस बात पर सरकारी मोहर लग चुकी है कि डैम वाकई ही टूटा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने गौर से सुना तो दे केम टू नो दैट द डैम हैज नॉट ब्रोकन, वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि द डैम हैज नाउ ब्रोकन। तो इससे जो है उनके औसान थोड़े बहाल हुए, एंड दे रियलाइज दैट खतरे की कोई बात नहीं है। ऑल द टाइम द सन शोन quietly and there was nowhere a sign of oncoming water. A visit in an airplane, कि अगर कोई विजिट करता एयरप्लेन में, looking down on the straggling agitated masses of people below would have been hard put to. Hard put to का मतलब होता है किसी बात को समझने से कासिर होना, किसी बात को ना समझने के काबिल होना। So a visit would have been hard put to डिवाइन, डिवाइन का मतलब यहां पर सोचना, समझना, अंदाजा लगाना। So now here the writer is saying that if somebody would have been in an airplane, he would have been hard put to it to divine what is happening down there when he would look at this straggling agitated masses. Straggling means गिरते दौड़ते और गिरते पड़ते लोग, एंड एजिटेटेड मीन्स परेशान हाल, बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद जो मासेस माना लोगों का जो हुजूम है, उनको अगर वो देखता तो ही वुड हैव हार्ड पुट टू इट टू डिवाइन व्हाट इज हैपनिंग डाउन देयर। तो वो आदमी जो है, ऐसा आदमी जो है वो बहुत ही परेशान होता कि यार ये हो क्या रहा है, ये लोग क्यों भाग रहे हैं, उसको जो है ये बात बिल्कुल समझ ना आती। So a person in an aeroplane, if he would have seen these masses in this condition, he would have been hard put to divine to it the reason for this phenomenon, कि ये सारा मामला जो है वो क्या है। phenomenon का मतलब मामला या वाकया, कि ये क्या हो रहा है नीचे। It must have inspired in such an observer a peculiar kind of terror like the sight of the Mary Celeste. तो उसके अंदर भी जो है ऐसे विजिटर, ऐसे ऑब्जर्वर के अंदर जो कि एरोप्लेन से ये सब कुछ देखता, तो उसके अंदर भी जो है वो खौफ पैदा होता जो कि उन मैरिनर्स के अंदर पैदा हुआ था जिन्होंने सबसे पहले मैरी सेलेस्ट जहाज को जो है शिप को डिस्कवर किया था। सो मैरी सेलेस्ट एक्चुअली वाज अ शिप स्टूडेंट्स दैट वाज फाउंड बाय सम मैरिनर्स, और इस शिप के अंदर क्या हुआ था कि
जब मैरिनर्स अंदर गए थे इस शिप के, तो उन्होंने देखा कि ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब वो सारे जो हैं कहीं गायब हो गए हैं, क्योंकि किचन के अंदर फायर भी जल रही थी और नाश्ता भी तैयार था और हर चीज साफ सुथरी थी उस जहाज के अंदर, जैसे कि लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस जहाज को बहुत अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है. बट when the mariners went to different parts of the ship, they found that there was nobody in that ship. So that is why they were also hard put to divine to it what is happening or what has happened to this ship, where the crew and the passengers of this ship have gone. So यहाँ पर जो है वो यही बात कर रहा है कि जो फीलिंग्स उनके अंदर पैदा होती वही फीलिंग्स जो हैं अगर कोई एरोप्लेन से ये सारा वाकया देख रहा होता तो उसके अंदर भी पैदा होती. So it must have inspired in such an observer a peculiar kind of terror. Peculiar means अजीब सा खौफ उसके अंदर पैदा कर देना था इस सारे वाक़े ने. Like the sight of the Mary Celeste abandoned at sea. वो जहाज जिसको के समुद्र में बीच में कहीं उसके अमला छोड़ के चला गया था. Its galley fires peacefully burning, its tranquil decks bright in the sunlight. वो जो किचन होता है जहाज का उसको गैली फायर्स कहते हैं कि उसकी किचन की फायर्स जो हैं आग उनमें जल रही थी और its tranquil deck bright in the sunlight. Tranquil means peaceful, खामोश कि वहां पर कोई भी नहीं था. An aunt of mine, Aunt Edith Taylor, was in a movie theater on High Street when over and above the sound of the piano in the pit as W.S. Hart picture was being shown, there rose the steadily increasing tramp of running feet. So an aunt of mine was in a movie theater. What was the name of his aunt? Edith Taylor. She was in a movie theater और अचानक जो है उसने सुना, क्या सुना? The sound over and above the sound of the piano in the pit, there rose the steadily increasing tramp of running. कि दौड़ते हुए कदमों की आवाज उसने सुनी. मूवी जो चल रही थी वो W.S. हार्ट की थी, जो कि एक अदाकार था उस दौर का, बहुत ही मशहूर और फेमस अदाकार. और उसमें पियानो की आवाज के ऊपर जो है उसने सुना कि बाहर से जो है एक कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज भी आ रही है. Persistent shouts rose above the ट्रैम्पिंग, और साथ ही साथ जो है उसको शाउट्स माना चिल्लाने की, चीखने की आवाजें भी जो है उसको साथ ही साथ जो है वो आना शुरू हो गई उस ट्रैम्पिंग के साथ. ट्रैम्पिंग कहते हैं कदमों की आवाज को, दौड़ते हुए कदमों की आवाज को. एन एल्डरली मैन सिटिंग नियर माय आंट mumbled something, got out of his seat and went up the aisle at a dog trot. He mumbled something. Mumble means बुड़बुड़ाना. And got out of his seat and went up the aisle at a dog trot. और जो है वो दौड़ता हुआ, dog trot का मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता दौड़ता हुआ जो है वो आइल में से जो है वो ऊपर चला गया. आइल किसे कहते हैं? AISL, आइल. इसको आइल पढ़ेंगे, आइजल नहीं पढ़ेंगे. सो ही वेंट अप द आइल, और वो उस आइल जो है दरअसल जब सिनेमा में या कहीं भी अगर जो है कुर्सियों की या बेंचों की कतार जो लगी होती है तो उसके बीच में जो रास्ता होता है उसको आइल कहते हैं. जैसे कि ट्रेन के अंदर या एरोप्लेन के अंदर भी जो है सीटों के बीच में से जो है मुसाफिरों के गुजरने का रास्ता बनाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आइल. सो ही वेंट अप द आइल एट अ डॉग ट्रॉट. आहिस्ता आहिस्ता दौड़ता हुआ वो ऊपर की तरफ चला गया आइल से. दिस स्टार्टल्ड एवरीबॉडी, और इससे जो है हर एक जो है वो चौंक उठा. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हर्ड द ट्रैम्पिंग साउंड्स, and then they heard the shoutings of the people, and then they saw this old man running up the aisle at a dog trot. So this startled everybody. इससे हर एक जो है वो चौंक उठा. स्टार्टल का मतलब क्या है? चौंक उठना. In an instant the audience was jamming the aisles. तो अगले ही लम्हे में, एक चश्मे ज़दन में, फौरन ही जितनी भी ऑडियंस थी वो उन्होंने भी उठकर दौड़ना शुरू कर दिया. और वो जो आइल थे उनके अंदर जो था अब बिल्कुल भी रास्ता नहीं था. लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. और इतने में एक खातून चिल्लाई, फायर फायर, shouted a woman who always expected to be burned up in a theater, but now
द शाउट्स आउटसाइड वर लाउडर एंड कोहियरेंट। अगरचे उस खातून ने फायर कहा था, जो कि हमेशा इस बात से डरती थी कि किसी रोज सिनेमा में आग ना लग जाए और वो जल ना जाए, लेकिन अब बाहर से जो आवाजें आ रही थी, द शाउट्स आउटसाइड वर लाउडर एंड कोहियरेंट, तो बाहर से जो आवाजें थी वो बहुत ही ज्यादा वाज़ेह थी, ऊंची थी और बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और क्या सुनाई दे रहा था उनको? द डैम हैज ब्रोक, क्राइड समबडी। और सिनेमा में से भी कोई जो है उसने कहा कि डैम टूट गया है, The dam has broke. Go east, screamed a small woman in front of my aunt. और मेरी जो है आंट के सामने जो एक और औरत बैठी थी, उसने कहा कि ईस्ट की तरफ चलो। And east they went, pushing and shoving and crawling, knocking women and children down, emerging finally into the street, torn and sprawling. और उसके बाद जो है वो सिनेमा से निकले। किस हाल में निकले वो सिनेमा से? पुशिंग, एक दूसरे को धक्के देते हुए, शोइंग का मतलब भी धक्के देना, एंड क्लॉइंग, क्लॉइंग का मतलब पंजों से एक दूसरे को दूर करना, नॉकिंग, नॉक का मतलब गिराना, नॉकिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, और बेचारी औरतें और बच्चे जो थे इस हाल में गिर रहे थे, डाउन, इमर्जिंग फाइनली इनटू द स्ट्रीट, और फिर जो थे वो बाहर गली में आकर जो है वो गिरते थे, टॉर्न एंड स्प्रॉलिंग, उनके कपड़े फटे हुए होते थे और वो चारों शाने चित होते थे। यानी कि उस भीड़ में से, उस सिनेमा के अंदर से बाहर निकलना जो था बहुत ही मुश्किल काम था, और जो भी बाहर निकलता था वो बाहर नहीं निकलता था बल्कि हकीकत में वो गिर पड़ता था। स्प्रॉल का मतलब चारों शाने चित। Inside the theater, Bill Hart was calmly calling some desperados bluff, and the brave girl at the piano played row 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 loudly and then in my harem. अब ये भी एक फनी सिचुएशन थी कि लोग जो थे वो बड़ी बेतरतीब अंदाज में एक दूसरे को धक्के देते हुए और बहुत ही बुरे तरीके से जो है बेहंगम तरीके से बदनज़मी से बाहर निकल रहे थे, और पीछे गाना कौन सा चल रहा था? रो रो रो। अब रो का मतलब इंग्लिश में कश्ती चलाना भी होता है, और दूसरा रो का मतलब लाइन भी होता है, स्टैंड इन अ रो, कि एक लाइन में आप खड़े रहें। तो पीछे जो गाना चल रहा था कि रो रो रो, यानी कि लाइन में लाइन में लाइन में, लेकिन जो लोग जो थे वो बिल्कुल ही बेहंगम तरीके से वहां से निकल रहे थे। लाउडली एंड देन इन माई हैरम। इन माई हैरम वाज आल्सो अ वेरी फेमस पियानो ट्यून ऑफ दोस टाइम्स। Outside men were streaming across the state house. और लोग जो थे वो स्टेट हाउस के सामने से जो है वो बहते हुए जा रहे थे। देखिए स्ट्रीम का मतलब बहना ही होता है, तो they were streaming across the state house yard. Others were climbing trees. A woman managed to get up to these are my jewels. और बाहर जैसे निकले तो थोड़े फासले पर एक यादगार थी, एक यानी कि स्टैचूज का जो है एक मजमुआ था जिसका नाम कोलंबस ओहायो में कहा जाता है। These are my jewels. These are my jewels actually was a monument. एक यादगार थी जिसमें मुजस्मे बनाए गए थे उन लोगों के जिन्होंने अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर, जो कि 1861 से 1865 तक जो है चली, उसमें हिस्सा लिया था और बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की थी इन लोगों ने, जिनमें से कुछ के नाम जो है राइटर यहां पर लिखता है, जैसे कि शर्मैन, स्टैंटन, ग्रांट एंड शेरिडन। दिस वॉर एक्चुअली वाज फॉट अगेंस्ट स्लेवरी, अगेंस्ट फॉर द एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। के कुछ स्टेट्स जो थी वो चाहती थी कि अमेरिका में जो है अब स्लेवरी खत्म होनी चाहिए, और कुछ स्टेट्स नहीं चाहती थी, लिहाजा उनके बीच में जंगें हुई, और इस वॉर में जो था इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा काम जो है वो किया था। तो लिहाजा इस वजह से इस स्टैचू को जो है दीज आर माई ज्यूल्स का जो है नाम दिया गया। और दीज आर माई ज्यूल्स एक्चुअली वाज अ लाइन दैट वाज टेकन फ्रॉम रोमन एनेक्डोट। कदीम रोम की कहानियों में से जो है ये जो है नाम लिया गया है, क्योंकि कॉर्नेलिया एक खातून जो कि बहुत ही अमीर थी, जब उससे लोगों ने पूछा, ज्यूरी ने पूछा कि वेयर आर योर ज्यूल्स, कि तुम्हारे ज्यूल्स यानी कि हीरे जवाहरात तुम्हारे कहाँ हैं, तो वो गई और अपने बच्चों को जो है वो ले आई साथ में, और उसने कहा कि दीज आर माई ज्यूल्स, कि ये है मेरे ज्यूल्स। तो यहां पर जो है इस मॉन्यूमेंट में जो खातून है वो इट स्टैंड्स फॉर कोलंबस ओहायो स्टेट, जो कि बता रही कि दीज आर माई ज्यूल्स, कि ये लोग जो हैं शर्मैन, स्टैंटन, ग्रांट और शेरिडन और इस जैसे लोग जिन्होंने सिविल वॉर के अंदर हिस्सा लिया और बड़े बड़े बहादुरी के काम किए, असल में तो मेरे जवाहरात, मेरे हीरे, मेरी दौलत जो है वो ये लोग हैं। सो दीज आर माई ज्यूल्स स्टैचू हुज ब्रॉन्ज फिगर्स ऑफ
Sherman, Stanton, Grant and Sheridan watched with cold unconcern the going to pieces of the capital city. लेकिन ये मुजस्मे जो थे वो कुछ इस अंदाज से इन लोगों को जो है देख रहे थे जैसे कि उनको परवाह ही ना हो कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं. With cold अनकंसर्न, यानी कि बिल्कुल ही जो है बगैर किसी कंसर्न के, बगैर किसी परवाह के वो इनको देख रहे थे. द गोइंग टू पीसेस ऑफ द सिटी. गोइंग टू पीसेस का मतलब होता है पारा पारा हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, बुरा हाल हो जाना. सो द सिटी वाज गोइंग टू पीसेस एंड दे वर वाचिंग इट विद cold unconcerned. I ran south to State Street, east on State to 3rd South, on 3rd to Town and out east on Town. My aunt Edith has written me. कि उसकी आंट एडिट ने बताया कि वो कौन कौन सी जो है तरफैन में, कौन कौन से इलाकों में जो है उसने वो दौड़ी या भागी. तो बताती है कि अ टॉल स्पेयर विमेन विद ग्रिम आईज एंड अ डिटरमिन्ड चिन रेन पास्ट मी डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट. कि एक बहुत ही लंबी सी और दुबली पतली सी खातून जो है, स्पेयर मींस दुबली पतली सी खातून, विद ग्रिम आईज जिसकी आंखों में बड़ी संजीदगी थी, एंड अ डिटरमिन्ड चिन और उसका जो चेहरा जो था उस पर बहुत ही ज्यादा अज़्म था. चिन कहते हैं ठोड़ी को. तो शी हैड अ डिटरमिन्ड चिन, यानी कि उसके चेहरे पर जो थी एक इस्तकामत थी, मजबूत इरादा नजर आ रहा था उसके चेहरे के ऊपर. सो शी रेन पास्ट मी, कि वो एडिथ टेलर के पास से गुजरी. अब ये वाकया जो है एडिथ टेलर ने लिखा अपने भतीजे को, जेम्स थर्बर को, कि शी रेन पास्ट मी डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, मिडल स्ट्रीट से जो है निकल के. आई वॉज स्टिल अनसर्टेन एज टू व्हाट वाज द matter in spite of all the shouting. That means the people were shouting, go east, the dam has broke, but I was still uncertain. मैं अभी भी जो थी यकीन नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि what was the matter, मसला क्या हुआ है. I drew up alongside the women with some effort, for although she was in her late 50s, she had a beautiful easy running form and seemed to be in excellent condition. So I drew up alongside the women with some effort. With some effort means बड़ी कोशिश करके, मैं बड़ी कोशिश करके जो है drew up alongside the women, मैं उस औरत के करीब आ गई और उसके साथ साथ मैंने भागना शुरू कर दिया. For although she was in her late 50s, she had a beautiful easy running form. अब देखिए यहां पर अगेन फॉर जो है कॉमा के बाद आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि वो खातून जो थी वो लेट 50s में थी, यानी कि 56, 57, 58 की एज थी उसकी. बट शी हैड अ ब्यूटीफुल इजी रनिंग फॉर्म, लेकिन उस नजर आता था कि वो एक्सरसाइज करती रहती थी, दौड़ती रहती थी. एंड सीम टू बी इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, लिहाजा उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी. मैंने उससे पूछा व्हाट इज इट, मसला क्या है. आई पफ्ड, पफ का मतलब हाँपना, हाँपते हुए बात करना. सो आई पफ्ड. शी गेव मी अ क्विक ग्लांस, उसने मुझ पर एक नजर डाली. क्विक, शी गेव मी अ क्विक ग्लांस, उसने मुझ पर तेजी से एक नजर डाली. एंड देन लुक्ड अहेड, और फिर उसने फिर सामने देखना शुरू कर दिया. स्टेपिंग अप हर पेस अ ट्राइफल, और उसने अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया. अ ट्राइफल मींस थोड़ा सा और. डोंट आस्क मी, आस्क गॉड, शी सेड. मुझसे मत पूछो, खुदा से पूछो. तो नोबडी न्यू, यानी कि लोग जो थे वो भागे जा रहे थे, एक दूसरे को देखा देखी, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि जनाब व्हाई आर वी रनिंग. अब जनाब वो बताता है डॉक्टर मैलोरी के बारे में कि व्हेन आई रीच्ड ग्रांट एवेन्यू आई वाज सो स्पेंट दैट डॉक्टर एच.पी. मैलोरी, you remember Dr. Mallory, the man with the white beard who looks like Robert Browning? Well, Dr. Mallory, whom I had drawn away from at the corner of 5th and Town, passed me. कि जब मैं ग्रांट एवेन्यू पर पहुंचा तो आई वॉज सो स्पेंट, कि स्पेंट का मतलब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था, कि डॉक्टर मैलोरी जो था ही पास्ट मी, कि वो जो है वो मुझसे आगे निकल गए. और मैं हैरान हुआ कि मैंने तो डॉक्टर मैलोरी को जो है बहुत पीछे जो है काफी बड़े फासले पर जो है मैंने उसको पीछे छोड़ दिया था, तो ये एकदम मुझसे आगे क्यों निकल गए हैं और ये इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हैं. और देखिए वो यहां पर वो कह रहा है कि यू रिमेंबर डॉक्टर मैलोरी, आपको याद है डॉक्टर मैलोरी, द मैन विद द व्हाइट बियर्ड, वो आदमी जिसकी सफेद दाढ़ी थी, हु लुक्स लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बड़े ही मशहूर शायर का नाम है. तो कहता है कि जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जैसा दिखता था. कहता है कि वेल डॉक्टर मैलोरी whom I had drawn away from at the corner of 5th and Town passed me, वो मेरे करीब से गुजरे. It's got us, और वो कह रहे थे कि हम मारे गए, सैलाब ने हमें आ लिया, सैलाब ने हमें पकड़ लिया. He shouted and I felt sure
that whatever it was did have us. और जब डॉक्टर मैलोरी ने कहा कि जनाब इट्स गॉट अस, कि हम सैलाब में हम फंस गए, पानी हमारे सरों पर पहुंच गया है, तो आई वाज श्योर दैट व्हाटएवर इट वाज हैव गॉट अस, कि जो कुछ भी वो था it was did have, कि जो कुछ भी है वो वाकई हमारे सरों पर पहुंच गया है. For you know what conviction Dr. Mallory's statements always carried, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर मैलोरी जो भी बात कहते थे वो हमेशा बड़ी कन्विक्शन से कहते थे. कन्विक्शन मींस पूरे यकीन के साथ, और लोग जो थे वो इस वजह से डॉक्टर मैलोरी की बात को कभी भी झुटलाते नहीं थे. I didn't know at the time what he meant, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज है जिसने हमें जो है आ लिया है, कौन सी चीज जो है हमारे सरों पर पहुंच गई है. बट आई फाउंड आउट लेटर, लेकिन बाद में मुझे पता चला. There was a boy behind him on roller skates, and Dr. Mallory mistook the swishing of the skates for the sound of rushing water. A boy was coming behind Dr. Mallory, but Dr. Mallory के पीछे एक लड़का रोलर स्केट्स के ऊपर आ रहा था, और डॉक्टर मैलोरी जो थे he mistook the swishing skates for the sound of rushing water. डॉक्टर मैलोरी गलती से समझे कि ये जो रोलर स्केट्स की जो आवाज है जो कि शर 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 करके आ रही है, ये शायद पानी है जो कि बिल्कुल उसके सर पर जो है वो पहुंच चुका है. So he mistook the sound, the swishing of the skates for the sound of rushing water. He eventually reached the Columbus School for Girls at the corner of Parson Avenue and Town Street, where he collapsed. और आखिरकार भागते 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 उसने बहुत दूर तक जो है उस लड़के को अपने पीछे रखा जो कि रोलर स्केट्स पर उसके पीछे बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन आखिरकार जो है he collapsed at टाउन स्ट्रीट, के टाउन स्ट्रीट पर पहुंचकर जो है वो कोलैप्स हो गया, गिर पड़ा. एक्सपेक्टिंग द कोल्ड फ्रॉथिंग वाटर ऑफ द सियोटो टू स्वीप हिम इनटू ऑब्लिवियन. और अब वो ये इस चीज की तवक्को कर रहा था कि अभी पानी आएगा सियोटो रिवर का, वो रिवर जिसमें वो समझते थे कि सैलाब आया है, और वो जो है इट विल स्वीप हिम into oblivion, और वो जो है उसको माजी का हिस्सा बना देगा. oblivion का मतलब क्या है? भूली बिसरी कोई बात, तो वो उसको जो है oblivion यानी कि एक भूली बिसरी चीज बना देगा. The boy on the skates swirled past him, लेकिन थोड़ी देर में वो बॉय जो है रोलर स्केट्स पर जो है उसके पास से जो है गुजरा, कि बॉय जो है वो तेजी से स्विर्ल करता हुआ जो है डॉक्टर मैलोरी के पास से गुजरा. एंड डॉक्टर मैलोरी रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट ही हैड बीन रनिंग फ्रॉम, और तब डॉक्टर मैलोरी को पता चला कि जिस चीज को वो तेजी से आता हुआ पानी समझ रहा था वो तो उस लड़के के रोलर स्केट्स की आवाज थी. और लिहाजा जब उसने पीछे देखा, सो लुकिंग बैक अप द स्ट्रीट, जब उसने पीछे मुड़कर देखा दोबारा, ही कुड सी नो साइंस ऑफ वाटर, उसे दूर तक पानी का कोई भी निशान नजर नहीं आया. बट nevertheless after resting a few minutes he jogged on east again, लेकिन थोड़ी देर जो है वहां पर सांस लेने के बाद जो है उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करना शुरू कर दी ईस्ट की तरफ. He caught up with me at Ohio Avenue, कि वो ओहायो एवेन्यू पर जो है आकर मुझसे मिला. He caught up with me at Ohio Avenue. He caught up with me at Ohio Avenue where we rested together, जहां पर हम दोनों ने थोड़ी देर जो है आराम किया, सस्ताए हम वहां पर. I should say that about 700 people passed us, तकरीबन 700 के करीब लोग हमारे करीब से गुजरे. And a funny thing was that all of them were on foot, और एक बहुत ही मज़ा का खेज बात यह है कि सब के सब लोग जो थे वो पैदल थे या दौड़े जा रहे थे. Nobody seemed to have had the courage to stop and start his car, क्योंकि लोगों की कारें भी थी, लेकिन किसी ने भी जो है इतनी हिम्मत नहीं की कि वो अपनी कार को स्टार्ट करे और फिर जो है कार लेकर जो है वो ईस्ट की तरफ जो है निकल जाए. बट एज आई रिमेंबर इट, ऑल कार्स हैड टू बी क्रैंक्ड इन दोज डेज. क्रैंक का मतलब होता है उस दौर के अंदर कारों को क्रैंक करना पड़ता था, यानी कि एक लिवर जो था बहुत देर तक घुमाना पड़ता था, तब कहीं जाकर कार का इंजन जो था स्टार्ट होता था. सो ही सेज के द रीजन दैट व्हाई these people were not on their cars was perhaps this, that all cars had to be cranked in those days, which is probably the reason. Probably means शायद, कि शायद ये रीजन था कि ये लोग जो थे उन्होंने कहा कि यार कौन अब कारों को क्रैंक करके जो है स्टार्ट करे, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर में जो है सैलाब हमारे सर पर आ जाए. लिहाजा उन्होंने कारों को स्टार्ट करने के बजाय दौड़ना ही जो है वो मुनासिब समझा.
The next day, the city went about its business as if nothing had happened, but there was no joking. लोग जो थे वो अगले दिन अपने अपने काम पर रवाना हुए, लेकिन किसी ने किसी के साथ किसी किस्म का मजाक नहीं किया, क्योंकि ऑल एक्चुअली वर बिफोल्ड, और सबको पता था कि हम लोग जो हैं किस तरीके से जो है बेवकूफ बने हैं एक अफवाह के नतीजे में. सो इट वाज 2 years or more before you dared treat the breaking of the dam lightly. तकरीबन कहता है कि इस इलाके के लोग इतने संजीदा मिजाज थे कि तकरीबन 2 साल बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर हंसते थे या एक दूसरे इस वाक़े को जो है थोड़ा सा लाइटली वो डिस्कस करते थे. Even now 20 years after, there are few persons like Dr. Mallory who will shut up like a clam if you mention the afternoon of the great run. कि ये जो ग्रेट रन या ये जो बड़ी यानी कि जो एक भागा दौड़ी हुई थी गांव के अंदर, अगर आप अभी भी 20 साल के बाद भी अगर उसका जिक्र करें तो देयर आर पीपल लाइक डॉक्टर मैलोरी. तो डॉक्टर मैलोरी जैसे लोग हैं हु विल शट अप लाइक अ क्लैम, जो कि बिल्कुल जो है खामोश हो जाएंगे और इस मौजू के ऊपर जो है बात करना पसंद नहीं करेंगे. क्लैम मीन्स ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करता है, बिल्कुल भी जो है किसी मौजू के ऊपर जो है वो अपनी लबकुशाई नहीं करता है, तो सच अ पर्सन इज कॉल्ड clam. So there are people who will shut up like a clam if you mention the afternoon of the great run even after 20 years.